आज हम 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो टॉपिक है वेक्टर्स वो स्टार्ट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स, सेक्शन फार्मूला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। पहले हम उसका डेफिनेशंस देखेंगे एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स वो पहले हम देखेंगे। तो वेक्टर इज डिफाइंड एज a physical quantity which has both magnitude as well as direction. A vector is defined as a physical quantity which has both magnitude and direction is known as the vector. हाँ, तो इसमें एग्जांपल्स क्या आएगा वेक्टर्स का? बार लिख सकते हैं। Vector is defined as a directed line segment, vector AB or AB bar or simply AB. Then there are various types of the vectors. हम अभी types of the vectors देखेंगे। Types of vectors. तो first जो type है, first type is unit vector. What is the definition of unit vector? A vector whose magnitude is unity is known as unit vector. A vector whose magnitude is 1 is known as the unit vector. It is denoted by capital A cap. A cap is equal to A bar upon magnitude of A bar. तो इसका definition क्या है? A vector whose magnitude is 1 is known as unit vector. It is denoted by A cap. A cap is equal to A bar upon magnitude of A bar. So this is a unit vector. There are the various types of the vectors. इसमें 2-3 टाइप दिए हैं। Then next is zero vector or the null vector. Null vector का definition क्या है? A vector whose magnitude is 0 is known as zero vector and it is denoted by 0 bar. A vector whose magnitude is 0
is known as zero vector. Then third vector, co-initial and co-terminal vector. Co-initial and co-terminal vector. A vector having the same initial points are called the co-initial vectors, whereas the vectors having the same terminal point is known as co-terminal vectors. Co-initial and co-terminus vector. Co-initial co-initial and co-terminal vector. Co-initial vector means we have to draw the two vectors. मैं दो vectors draw करता हूँ. These are the two vectors. This vector is a bar and this vector is b bar. इसमें initial point fix है, तो इसको हम बोलेंगे co-initial vector. Co-initial vector. मैं दो vectors draw करता हूँ. Here, this is a starting point of the vector and this is a end point of the vector. These two vectors are intersect at this point. Then it is said to be a co-terminal vector. Co-terminal means terminal point remains same and co-initial means initial point remains same. It is known as the co-initial and co-terminus vector. Then collinear vector. Collinear vector. कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल लाइन. वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल लाइन. Sorry, vectors lies in a same line or in a parallel line. Now see, these are the two vectors AB and BC vectors lies in a same line, or this is another vectors DE. These two vectors are parallel. AB is parallel to DE. Clear? Vectors lies in a same line or in a parallel lines is known as the collinear vectors. Vectors lies in a same line or in a parallel line is known as a collinear vector. Coplanar vector. Coplanar vectors. Vectors lies in a same plane. Now suppose this is a plane. This is a plane. This is a one vector. This is a bar. This is another vector b bar. This is another vector c bar, and this is another vector that is a d bar. Means this is a one plane. Coplanar means vectors lies in a same plane. Means a bar, b bar, c bar are the coplanar vector, but a d bar is not coplanar. Means coplanar means a vectors lies in a same plane. Vectors lies in a same plane. Means here a bar, b bar, c bar are coplanar vector and d bar is not coplanar. अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, इक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they having the same magnitude as well as direction. They having the same magnitude as well as direction. मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं. दिस इज अ वन वेक्टर AB having this direction and this is a two vectors CD having the same direction. Means AB bar and BC bar have the same direction and their magnitude is the same. Means AB bar and CD bar are equal in magnitude. Equal in magnitude means दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए. अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए. यूनिट मे बी एनी. Means magnitude is the same and direction is the same. Then we say that the two vectors are equal vectors. Two vectors are इक्वल वेक्टर्स. देन नेगेटिव वेक्टर्स में दोनों का डेफिनेशन सेम है. नेगेटिव वेक्टर मींस अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट.
a vector having the same magnitude but different direction. Negative vector, negative vector, a vector having the same direction, same magnitude means AB और BCD का जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम आना चाहिए, बट AB बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ CD बार. अभी नेक्स्ट वेक्टर देखेंगे, फ्री वेक्टर्स. इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन अ स्पेस without changing its magnitude and direction, then such a vector is called a free vector. In other words, the initial point of a free vector can be taken anywhere in a space, keeping the magnitude and the direction same. तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, दिस इज अ बी बार. ये बी बार का डायरेक्शन में चेंज करता हूं ए बार, लेकिन इसका जो मीन्स ये जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर, इस डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्लियर, और इनिशियल पॉइंट भी सेम होने की जरूरत नहीं है. कंडीशन क्या है, they are the free vector in a plane they are the any free vector. Now this is a b bar and this is a bar having the same magnitude, और डायरेक्शन कैसे, ये डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर. अभी ये डायरेक्शन है, मैंने डायरेक्शन चेंज किया लेकिन ये इस डायरेक्शन में जाएगा. अगर मैंने ऐसा डायरेक्शन किया तो वो गलत है. अगर ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए. ये देखो, दिस इज अ starting point, then starting point, this is a one vector and this is a another vector. अगर मैं डायरेक्शन ऐसे करता हूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा. अभी लोकलाइज वेक्टर क्या है, फॉर अ वेक्टर of a given magnitude and a direction, if its initial point is a fix in a space, then such a vector is called the localized vector. यहाँ पे जो है initial point fix आ जाएगा, for a given magnitude and direction. For example, if there are the two stationary car A and B on a road and force is applied to a car A, इसको फोर्स ए काल अगर हम चालू करते हैं वो धीरे धीरे आगे जाएगा. इट इज सेड टू बी अ लोकलाइज्ड वेक्टर एंड ओनली कार ए मूव्स व्हाइल द कार बी इज नॉट अफेक्टेड. मीन्स फॉर अ वेक्टर गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स. ये दोनों का इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया. अगर हमने मूव किया और ये एज इट इज किया, लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट फिक्स है, बाद में ये हम मूव कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स होना चाहिए, अभी हम ये मैग्नीट्यूड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको हम बोलेंगे कोलिनियरिटी कंडीशन. इसका दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर्स. तो ये कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे. कोलिनियरिटी कंडीशन. Suppose this is a segment ABC. B is a midpoint of segment AC. Suppose B is a midpoint of segment AC. तो हम AC कैसे लिख सकते हैं, AB plus BC. मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, AC is equal to AB plus BC. If point B is the same, means this distance is same, AB is equal to BC, as B is a midpoint, means we can write BC is also AB, because AB and BC are same, therefore AC is equal to AB plus BC, but B is a midpoint, then AC is equal to AB plus AB. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा AC. अगर हम दोनों का वेक्टर्स लेते हैं, सपोज दिस इज अ डायरेक्शन, अगर हम ये डायरेक्शन कंसिडर करेंगे तो AC बार
is equal to 2 times AB bar. If we consider the direction, then AC bar is equal to 2 times AB bar. Means point B is a midpoint of the segment AC. Then we say that AC bar is equal to 2 AB bar. लेकिन मुझे ये जो B पॉइंट है वो मिड पॉइंट मुझे पता नहीं है. If the point B is anywhere in the segment AB, if the point B is anywhere in the segment AB, ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें क्या है, B is मिड पॉइंट, B is मिड पॉइंट. अभी मैं क्या करता हूं, B is anywhere in the segment, anywhere in the segment AC. If the point B is anywhere in the segment AC, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC बार इज इक्वल टू सम स्केलर. वो जो है वो 2 टाइम्स रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा, 1/2 टाइम्स रहेगा, 5 टाइम्स रहेगा, 1/3 टाइम्स रहेगा, 3/2 टाइम्स रहेगा, लेकिन मुझे वो पता नहीं है, उसको मैं m डेनोट करूंगा. Means one vector is scalar multiple of other vector. Scalar multiplication का concept क्या है, one vector a bar is a some scalar m is a any scalar and b bar. Means अगर ये condition satisfy होती है, one vector is a scalar multiple of other vector, m is a scalar, इसको मैंने बार नहीं किया है, this is not a vector. Means AC bar is a scalar multiple of AB bar, then we say that 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्लियर, देन वी से दैट AC बार is scalar multiple of AB bar. AC bar is a scalar multiple of AB bar. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी से दैट AC bar and AB bar are collinear vector. Collinear vector. And point ABC are in straight line or lies in a are in means are collinear vectors. ABC are in straight line or ABC are collinear vector. हाँ, तो ABC are in straight line. इसमें अगर एक पॉइंट कॉमन रहता है, AC एंड AB में A पॉइंट कॉमन है, अगर if the one point is common, then we say that ABC are collinear vector. Suppose AB bar is parallel to CD bar, AB bar is M into the CD bar, इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, then we say that the two vectors are parallel vectors. If the two vectors are parallel, अगर दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, देन वी से दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. ये भी कंडीशन हम लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू m इंटू बी बार. देन एडिशन ऑफ टू वेक्टर जो है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल. लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे. इफ द वन वेक्टर कैन बी ड्रॉन, second vector can be drawn from end point of the first vector. Second vector can be drawn from end point of the first vector. Then the resultant vector can be drawn from starting point of the first vector to the end point of second vector. One vector can be drawn. Second vector can be drawn from end point of the first vector. Means a second non-collinear. कंडीशन क्या है, सेकंड नॉन कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर मीन्स एक लाइन में नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट डायरेक्शन होना चाहिए उसका. सेकंड नॉन कोलिनियर वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. देन द रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर. तो OB बार इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा, OA बार प्लस AB बार. OA बार इज इक्वल टू OB bar is equal to OA bar plus AB bar. This is a law of triangle or addition of the two vector. पहले हमने देखा addition of two vector, it is also called as the
लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू ट्रायंगल मीन्स और लॉ ऑफ ट्रायंगल। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर मीन्स इफ द टू वेक्टर्स आर एडेड। लॉ ऑफ ट्रायंगल हमने देखा। अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वो देखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ उसको भी बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ उसका डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and a direction by two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant represent the diagonal of the parallelogram. डेफिनेशन में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लॉ है वो एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्शन वो सेम होना चाहिए, ये दोनों डायरेक्शन सेम होने चाहिए, ऐसे और ऐसे। इसका डायरेक्शन ये जा रहा है तो इसका भी डायरेक्शन ये जाना चाहिए। ये देखो अभी क्या है, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant represent the diagonal of the parallelogram. अगर resultant का मीनिंग है addition of the two vectors, OC bar is equal to OA bar plus OB bar, तो ये डायरेक्शन है। OC बार इज इक्वल टू OA बार प्लस OB बार, तो OC बार इज इक्वल टू कितना आता है, OA बार प्लस OB बार। दिस इज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, तो इसमें वेरियस पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर एक वेक्टर है पी क्यू, सेम वेक्टर मैं कंसिडर करता हूँ क्यू पी इस डायरेक्शन में। अगर हम दोनों का एडिशन करेंगे पी क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है इसमें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखो। कॉम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ए बार प्लस बी बार मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, राइट हैंड साइड में ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दिस इज अ वेक्टर associative law. A bar plus 0 is equal to A bar. 0 is a additive identity. A bar minus A bar means A bar plus minus A bar is equal to 0. Clear? If the A bar and B bar are the two vectors and M and N are the scalars, then M plus N A bar is equal to M A bar plus N A bar. इसको हम distributive property बोलेंगे। M into bracket A bar plus B bar is equal to M A bar plus M B bar, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टी हमें लगेगा। m इंटू एन ए बार इज इक्वल टू एम एन ए बार n इंटू एम ए बार। ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ये भी प्रॉपर्टी याद रखना है। मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार। एमसीक्यू के लिए ये ऑप्शन आ सकता है। टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार determine a plane and the vectors a bar plus b bar and a bar minus b bar lie in a same plane. तो ये जो एक्टिविटी है ये आप कर सकते हैं। क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस, ये कैसे आ जाएगा? दिस इज अ वन वेक्टर क्यू आर, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आर एस मीन्स ये डायरेक्शन आ जाएगा। थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन कैसे रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। मैंने ट्रायंगल लॉ लिया है, ये देखो। फर्स्ट वेक्टर कैन बी ड्रॉन, सेकंड वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। देन द थर्ड वेक्टर कैसे लिखेंगे? ओ बी बार लिखना है। अगर बी ओ बार लिखते हैं तो गलत है, ओ बी बार आना चाहिए। ओ ए बार, ओ ए बी बार, तो उसके बाद कितना लिखेंगे हम? ओ बी बार। तो ये इसमें एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं। एक एक्टिविटी मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्यू आर, क्यू आर मीन्स ये वेक्टर आ जाएगा क्यू आर। हाँ, सेकंड वेक्टर आर एस, यहाँ पे जो ब्रैकेट है यहाँ पे कौन सा वेक्टर आना चाहिए? क्यू एस लिखेंगे, क्यू एस बार। अगर यस क्यू बार लिखते हैं तो गलत है, डायरेक्शन जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें से ये आप कर सकते हैं। अभी ये हम थ्योरम देखेंगे। ये थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया था। थ्योरम 1, टू नॉन जीरो वेक्टर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट m and n, at least one of them is a non-zero such that m a bar plus n b bar is equal to 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लेंगे?
सपोज ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, यहाँ पे दिया है उन्होंने ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, लेकिन कोलिनियर का कंसेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इफ द टू वेक्टर्स आर द कोलिनियर, then a bar is a scalar multiple of other, means a bar is equal to t into b bar, a bar is equal to t into b bar। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a bar माइनस t into b bar is equal to 0। यहाँ पे क्या आएगा, 1 into a bar मैं लिख सकता हूँ, और माइनस टी को हम क्या डिनोट करेंगे, एन डिनोट करेंगे। 1 को मैं एम डिनोट करूंगा और माइनस टी को क्या डिनोट करेंगे, एन। तो एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू द 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, then we say that the two vectors are collinear vectors, two vectors are collinear, then this condition is satisfied, ma bar plus nb bar is equal to 0। अभी हम ये कॉन्वर्सली प्रूव करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन ma bar is equal to माइनस mb bar, ये हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो a bar is equal to माइनस n by m, n by m ये कांस्टेंट है, इसको हम a नहीं डिनोट कर सकते हैं, इसको मैं t डिनोट करूंगा, तो a bar is equal to t into b bar। तो कंसेप्ट क्या होगा, a bar is a scalar multiple of b bar, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, one vector is a scalar multiple of other vector, then the two vectors are collinear vector, यहाँ पे मैंने वो एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a bar is a scalar multiple of b bar, means a bar and b bar are collinear vectors। तो ये आप रीड कर सकते हैं, corollary 1 and corollary 2। ये कोप्लेनर वेक्टर्स, ये थ्योरम एग्जाम में आता है, कोप्लेनर जो सेकंड थ्योरम है, वो सेकंड थ्योरम अभी हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। A bar and B bar are non-collinear vector. A vector R bar is coplanar with A bar and B bar if and only if there exist a unit scalars T1 and T2 such that R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar। तो इसमें फर्स्ट केस पहले प्रूव करेंगे। फर्स्ट केस में जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करना है। आर बार इज अ कोप्लेनर, कोप्लेनर का मीनिंग क्या है, एक ही प्लेन में वो होना चाहिए, एक ही प्लेन में वो होना चाहिए। क्लियर। टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिट स्केलर्स T1 and T2 such that R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar, ये हमें वेरीफाई करना है। तो ये थ्योरी लिखना है स्टार्टिंग में, A bar is a first vector means OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar। तो ये स्टार्टिंग में लिखना है। तो मैं यहाँ पे पूरा थ्योरम्स आपको डिटेल लिखना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरम 2, OA bar is a one vector, OB bar is another vector। ये वेक्टर को मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा और ये वेक्टर को ये एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। दिस वेक्टर इज सेम, हम नाम देंगे यहाँ पे, ये इसमें जो पॉइंट है वो M, दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज N, दिस पॉइंट इज P, इसको हम R बार डिनोट करेंगे OM। तो OA बार इज इक्वल टू A बार आ जाएगा, OB बार इज इक्वल टू B बार आ जाएगा। तो OMA दिस इज अ कोलिनियर, कोलिनियर। हाँ, ये जो है वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में है। क्लियर। तो OM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड T1 एंड T2 आर द एनी स्केलर, T1 and T2 are any scalar, T1 and T2 are any scalar। तो OM is equal to कितना आ जाएगा, OM is equal to some scalar into OA bar। तो OM is equal to हम क्या लिखेंगे, OM is equal to T1 into A bar, T1 into A bar। Similarly ON is equal to, ON bar is equal to, ON bar is equal to some T2 into OB bar, मीन्स ये जो है वो तीनों OM आर कोलिनियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONB आर कोलिनियर। हाँ, कोलिनियर है ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ON इज इक्वल टू T इंटू OB। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T इंटू B बार, T इंटू B बार।
ओ बी बार कितना है बी बार, ओ बी बार कितना है बी बार। हाँ, तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करूंगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओपी बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस ओ एन बार। क्लियर। तो ओ एम बार प्लस मीन्स आर बार इज इक्वल टू टी वन इंटू ए बार प्लस टी टू इंटू बी बार। तो ये कंडीशन हमारी वेरीफाई होती है, आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार। क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, these are the coplanar vector। क्लियर, कोप्लेनर वेक्टर। तो हमें वेरीफाई करना था ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर, मीन्स एक मैंने एक वेक्टर ऐसा लिया और जो दूसरा वेक्टर ऐसा लिया। क्लियर। और हमें वेरीफाई करना था ओपी बार इज इक्वल टू टी वन इंटू ए बार एंड टी टू इंटू बी बार। तो ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। R bar is equal to T1 A bar and T2 B bar. We have to show that R bar, A bar and B bar are coplanar vector. A bar and B bar are coplanar. T1 A bar and T2 E bar are also coplanar vector. This shows that T1 A bar plus T2 B bar are coplanar vector. ये हमने रिजल्ट वेरीफाई किया है। अभी इसका कॉन्वर्स प्रूव करेंगे। कॉन्वर्स मीन्स यूनिकनेस प्रूव करेंगे। यूनिकनेस प्रूव करेंगे। वो यूनिकनेस क्या है वो देखेंगे। यूनिकनेस, आर बार क्या हमने प्रूव किया है टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार। क्लियर, आर बार इज इक्वल टू हमने प्रूव किया है टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार। लेकिन अगर हम तो यस वन एंड यस टू आर द अनदर स्केलर, लेट इफ पॉसिबल हम क्या करेंगे, आर बार इज इक्वल टू यस वन ए बार प्लस यस टू बी बार। इफ द यस वन एंड यस टू आर द अनदर स्केलर सच दैट टी वन ए बार, टी वन और टी टू की जगह हम दूसरा स्केलर करेंगे एस वन और एस टू, लेकिन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सेम दिखाएंगे। टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार इज इक्वल टू एस वन ए बार प्लस एस टू बी बार। यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, टी वन ए बार माइनस एस वन ए बार इज इक्वल टू एस टू बी बार माइनस टी टू बी बार। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, टी वन माइनस एस वन ए बार इज इक्वल टू एस टू माइनस टी टू बी बार। ये जो है टी वन माइनस एस वन ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ए बार इज इक्वल टू एस टू माइनस टी टू अपॉन टी वन माइनस एस वन इज इक्वल टू बी बार। ये पूरा कांस्टेंट है, एस वन एस टू कांस्टेंट है, एस वन एस टू कांस्टेंट है, टी वन टी टू। इसका जो कुछ तो भी आंसर आ जाएगा, दैट आंसर इज डिनोटेड बाय एम। मैं डिनोट करूंगा, मींस वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ए बार एंड ए बार इज इक्वल टू एम बी बार, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर, आर कोलिनियर वेक्टर्स। लेकिन प्रॉब्लम में मेंशन है ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। तो ये जो हमने अजम्पशन किया था लेट इफ पॉसिबल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ T1 is not equal to S1 and T2 is not equal to S2। ये जो हमने assumption किया था, दो assumption wrong है। A bar and B bar are collinear vector, our this is contradiction, ये contradiction हो गया, this is contradiction, our assumption is wrong, our assumption is wrong। हमने assumption क्या किया था, means T1 is not equal to S1 and T2 is not equal to S2 are not possible। ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर T1 इक्वल टू S1
and T2 is equal to S2. Therefore, R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar. तो ये जो हमने दूसरा कंडीशन लिया था S1 और S2, ये पॉसिबल नहीं है. तो this shows that R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar, means R bar is a linear combination of A bar and B bar. तो ये यूनिकनेस वेरीफाई हो गया. ये अभी हमारा थ्योरम हो गया. ये जो छोटे छोटे पॉइंट से है ये थ्योरम्स. ये थर्ड थ्योरम आप रीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. थ्योरम 2 इज इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आता है. ये करोलरी 1 करोलरी 2 आप रिसर्च कर सकते हैं. अभी टू डायमेंशन जो वेक्टर है, टू डायमेंशन वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए आई प्लस बी जे. अभी थ्री डायमेंशन वेक्टर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे हम. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अभी थ्री डायमेंशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन vectors in a space. Vectors in space means a three dimension. टू डायमेंशन में दो एक्सिस आ जाते हैं, थ्री डायमेंशन में थ्री एक्सिस आ जाएंगे. ओ, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जे एक्सिस. नाउ इन थ्री डायमेंशन, नाउ सी द कंसेप्ट ऑफ अ थ्री डायमेंशन. आपने मूवीज देखा होगा, 3D मूवीज, थ्री डायमेंशन मूवीज. छोटा चित्र एक मूवी आया था, वो थ्री डायमेंशन मूवीज है. उसमें क्या करता है, मीन्स देयर आर टोटल थ्री डायमेंशन, मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओ एक्स along the x axis, OY along the y axis, and OZ along the z axis. Clear? If the point P is in space, if the point P is in space, space means ये जो point है वो space में रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x, y, z, x, y, z. IJK are the unit vectors. IJK are the unit vectors along the direction of coordinate axis. IJK are the unit vectors along the direction of coordinate axis. Then representation of the point P in a space, it is denoted by OB bar. IJK, I is along the x-axis, J is along the y-axis, and K is along the x एक्सिस. तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप. IJK are the unit vectors along the positive direction of coordinate axis. The representation of the OP bar is equal to xi plus yj plus zk. This is a representation of OP. अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP is equal to x square plus y square plus z square. मीन्स दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, पोजीशन वेक्टर. इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस. ओपी बार, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ओपी बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस. पोजीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स इन अ स्पेस. अगर मुझे, तो यहाँ पे हम पहले अप्लाइन करेंगे along the x axis, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x 0 0. along the y axis इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 y 0. along the z axis इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 0 z. इसमें तीन प्लेन आते हैं, x o y. this is a one plane. in x o y plane z is a 0. x o z plane y is a 0. in y o z plane then x is a 0. means corresponding plane में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है वो यहाँ आना चाहिए. क्लियर, यही यहाँ पे दिया है. along the x axis x 0 0, along the y axis 0 y 0, along the z axis 0 0 z. इन x o y प्लेन में z 0 रहेगा, y o z प्लेन में x 0 रहेगा, x o z में y 0 रहेगा. क्लियर, तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from xy plane, that the distance is a z. The distance of the point P from yz plane, that distance is x. The distance of the point P from xz plane, that is y.
ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ओपी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कितना आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर मुझे लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बी। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है मैंने 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन किया है। अभी पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन ये एक्सप्लेन करेंगे। पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, पोजीशन वेक्टर इन 2D, पोजीशन वेक्टर इन 2D वो कैसे आएगा वो देखेंगे। सपोज ए बी है ये, हाँ, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दिस पॉइंट इज ओ इज ओरिजिन। यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये ज्वाइन करूंगा, यहाँ से मैं ये ज्वाइन करूंगा। क्लियर? तो डायरेक्शन कितना आ जाएगा, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल लॉ कैसे आएगा, ये देखो, ये फर्स्ट वेक्टर है ओ ए एंड सेकंड वेक्टर है ए ओ बी। तो ओ बी बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ बी बार इज इक्वल टू ओ ए बार प्लस ए बी बार, ओ ए बार प्लस ए बी बार। हाँ, तो मुझे क्या लिखना है, ए बी बार लिखना है। ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार। तो अभी क्या है देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ बी बार हम कैसे डिफाइन करेंगे, बी बार। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए डिफाइन करेंगे हम ए बार। तो ए बी बार कितना आ जाएगा, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेगमेंट। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी सेगमेंट फाइंड आउट करना है ए बी बार, तो कैसे, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बी बार माइनस ए बार। तो ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सी डी बार आ जाएगा। सी डी बार कैसे लिखेंगे हम, डी बार माइनस सी बार। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू बार, क्यू बार माइनस पी बार मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी सेगमेंट इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। अगर मुझे एक पॉइंट डिनोट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मीन्स दैट इज ओ ए बार, it represented as a small a bar. Position vector of b, that is ob bar, that is a small b bar. This is the position vector in a 2-dimensional concept, and this is a position vector of 3-dimension concept. अभी नेक्स्ट थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। इफ ए बार बी बार सी बार आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, then any vector r bar in a space can be uniquely expressed as a linear combination of a bar b bar c bar. तो पहले हमने क्या किया था, एक प्लेन कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे कितने प्लेन्स है देखो, ये दिस इज अ फर्स्ट प्लेन ए बी सी क्यू, दिस इज अ फर्स्ट प्लेन ए क्यू आर एस, दिस इज अ सेकंड प्लेन ए बी टी एस, दिस इज अ थर्ड प्लेन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, ए बार बी बार एंड सी बार lies in 3 different plane. A bar, B bar and C bar are the 3 non-coplanar vector. Non-coplanar means 3 different plane में हमने लिए है। क्लियर? और ये जो AP bar है, AP bar is equal to R bar. Then A bar, B bar, C bar are non-coplanar vector. हमें क्या प्रूव करना है देखो, R bar is a linear combination of A bar, B bar, C bar. हमने 2 डायमेंशन में कैसे किया था, R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar. तो 3 डायमेंशन में हमें ये वेरीफाई करना है। तो ए बी बार एंड ए बार आर कोलिनियर, ए बी बार एंड ए बार आर कोलिनियर। तो ए बी बार मैं कैसे लिख सकता हूँ, सम स्केलर एक्स, यहाँ पे हम स्केलर डिनोट करेंगे, ए बी बार इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार। ये कंसेप्ट मैंने बताया है। हाँ, सिमिलरली ए क्यू कैसे आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू वाई इंटू बी बार। सिमिलरली ए एस कैसे आ जाएगा, ए एस इज इक्वल टू वाई इंटू सी बार। दिस इज अ कोलिनियरिटी कंडीशन। हाँ, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी बार इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार, वेयर एक्स इज अ स्केलर, ए क्यू बार इज इक्वल टू वाई इंटू बी बार। ए बी बार इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बार, वेयर एक्स इज अ स्केलर, ए क्यू बार इज इक्वल टू वाई इंटू बी बार, ए एस बार इज इक्वल टू जेड इंटू सी बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए सी पी। ये ट्रायंगल में मुझे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है। तो ए सी बार मीन्स ये डायरेक्शन है, सी पी बार मीन्स ये डायरेक्शन है। तो ए पी बार इज इक्वल टू कितना होगा, ए पी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सी पी बार।
AP बार इज इक्वल टू AC बार प्लस CP बार। लेकिन AC बार में फिर से ट्रायंगल लॉ हम अप्लाई करेंगे। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में हम फिर से अप्लाई करेंगे। AC बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB बार प्लस AC बार। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट है AB बार प्लस BC बार। तो AC बार की जगह क्या लिख सकते हैं हम? AB बार प्लस BC बार। तो ये आ जाएगा AB बार प्लस BC बार प्लस CP बार। क्लियर? लेकिन AB क्या है? X इंटू A बार। BC क्या है? Y इंटू B बार। CP क्या है? Z इंटू C बार। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, तो R बार इज इक्वल टू XA बार प्लस YB बार प्लस ZC बार। मीन्स वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल, वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री वेक्टर। ये हमारा वेरीफाई हो गया। आर बार इन अ स्पेस कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार सी बार। ये थ्योरम एग्जाम में आता है। अभी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? आर बार इज इक्वल टू x1 ए बार प्लस x2 बी बार प्लस x3 सी बार। सिमिलरली आर बार इज इक्वल टू अनदर वेक्टर लेंगे, y1 ए बार, y2 बी बार एंड y3 बी बार। और ये जो दोनों है वो डिफरेंट है। हाँ, x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 ये डिफरेंट है। मींस x1 इज नॉट इक्वल टू y1, x2 इज नॉट इक्वल टू y2, x3 इज नॉट इक्वल टू y3। लेकिन हमें वेरीफाई करना है वो तीनों सेम है। ये सॉरी, दोनों सेम है। मींस x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2, x3 इक्वल टू y3। दोनों हम इक्वल करेंगे, दोनों हम इक्वल करेंगे। यहाँ पे दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस y1 ए बार, x2 माइनस y2 बी बार, x3 माइनस y3 सी बार इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? इफ वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर टू वेक्टर, मींस ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर। अगर ये कंडीशन पहला थ्योरम में हमने वेरीफाई किया था, लेकिन यहाँ पे वो कोप्लेनर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ए बार बी बार सी बार ये आर द नॉन कोप्लेनर वेक्टर। मींस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो हमने अजम्पशन किया था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 एंड x3 इज इक्वल टू द y3। ये हमारा वेरीफाई हो गया।